Please raise your hand. If you are in first year, second year, whichever year you are, please create your resume. Because in future, you are going to work somewhere. So you need resume. And resume can't be built in just, can be created in just one day, but it requires 6 months or a year to build a good resume. Because you need to write some skills in the resume. Okay, so everyone, please create your resume. And what I'll ask to Sujata professor that if we can give them 3 or 4 days and they can send their resumes, and I'll check it and I'll tell I can give my feedbacks on their resumes. Yes, sir. So that thing we can do. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰ বায়োডাটা বা CV তোমালোকে ইতিমধ্যে বনাই থৈছা ছাৰে হাত দাঙিবলৈ কৈছিলে নহয় sir ask you to raise your hand but I can see except Samujjal no one is raising hand. Rishabh is there. Yes. Ujjwal CV বনোৱা নাই নেকি ময়ো নাই বনোৱা Pranjit Aman ma'am নাই বনোৱা So, sir, no one has till now built their resume, so they will prepare. So, sir, basically you can talk in Hindi also. Yeah. Sir, basically we are all students now. Why should students actually? If you are a student, it's a great opportunity in whatever the college you are studying. Yeah. College, what is your financial background? From which family background do you come from? Which state do you come from? It doesn't matter. Main thing is the resume. What have you written on? Projects you have done in your college time? What are the certificates? Certificates won't matter much, but still, projects, your internships, and what practical experience have you gathered? So may I know what fields are you from, everyone, if you can tell me. Sir, I am from science stream. Science. PCM, 11th 12th. And are you doing BSc? Yes. Which year? Mathematics. 4th. I mean 4th sem, sir. 4th sem. Okay, and I hope you understand. Maybe 4th sem. Okay. It's And second year, sir, 4th semester. I mean, in first year we have 2 sem, first and second, like that. Ayan? Yes, sir. Yes. Ayan, what about you? In which? सर मैंने 11-12 PCM किया था और अभी मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ. अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर में हो भी आप? यस सर. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की, क्योंकि ये सारी जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब कॉलेज एंड करोगे उस टाइम आपके प्लेसमेंट्स आएंगे स्कूल कॉलेज में, या फिर आप जिस कंपनी में, ट्रस्ट मी, जिस भी कंपनी का आप सोच लो उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो भी कंपनीज आपके फील्ड की हैं. कोई डाउट ही नहीं है. अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट है, बॉडी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में पता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज, आपने ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बोले हैं धीरे धीरे आप डेवलप कर रहे हो, और इंटरव्यूज की स्किल जो है वो भी आपको आती है, आपको नेटवर्किंग आती है, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है. तो इसके अलावा प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसका आपको 60% 70% उस पर कमांड है आपकी. बिकॉज वेन यू विल अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वो ऐसा नहीं कि परफेक्ट इंसान देख रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल बी ट्रेनिंग यू. जब आप काम करोगे एक्चुअल में उस फील्ड में, तभी आपको वो सीखने को मिलेगा. बट Yes, sir. अभी आप, लॉट ऑफ पीपल माइट बी नीड ऑफ द जॉब राइट नाउ, में भी काम अभी आप पढ़ रहे हो, साथ में जॉब की जरूरत हो सकती है, और वर्क फ्रॉम होम भी आज बहुत सारे पॉपुलर है, वर्क फ्रॉम होम. सो यू कैन वर्क फ्रॉम होम. अगर आप ये सारी आप में स्किल्स होंगी, आप धीरे धीरे डेवलप करते जाओगे, तो आपको बहुत जल्दी आपको जॉब्स, अब अभी कभी भी जॉब चाहिए आपको जॉब. Got it. So let's start creating our resume. So what you can do is, I'll share the Canva application. Canva के बारे में, Canva पर डिजाइन बनाया है कोई भी, किसी ने भी नहीं पता? I can see your faces. हाथ अगर, if you can raise your hand. कैनवा पर किसी ने भी बनाया है? नहीं. राइट डाउन. एप्लीकेशन का नाम लिखो कैनवा, CANVA, कैनवा. किशोर दास, आप में तीनों में किसी ने कैनवा यूज किया है? नहीं किया? लिख लो कैनवा.
आज के टाइम में पावर पॉइंट नहीं यूज करते हैं, बहुत रेयर कोई पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं। आप अच्छी से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, कैनवा पर बनाओ। यूट्यूब के थंबनेल्स बनाना चाहते हो, कैनवा से बनाओ। ओके, कोई भी चीज है, आप इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी डालनी है, कुछ भी डालना है, आप कैनवा से बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। अपना रेज्यूमे भी आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट। सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द रेज्यूमे ऑफ समवन। यहां पर आप यू आर गोइंग टू फर्स्ट you are going to paste a profile picture, paste a picture here and then name, और फिर आपका किस चीज के एक्सपर्ट हो आप, like he is a physics expert। now ये लाइन जो है आपने लिखी है, ये खुद की पर्सनल लाइन लिखनी है। लॉट ऑफ पीपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, ये इन्होंने खुद की लिखी है। being a devoted physics teacher, it is my ikigai to cultivate in students genuine love for the captivating world of physics। कि एक्चुअल में फिजिक्स के लिए एक जेन्युइन लव पैदा करना, क्रिएट करना, कल्टीवेट करना, वो मेरा काम है। ये इनकी खुद की लाइन है। इट इज माय इकिगाई। इकिगाई अगर आपको नहीं पता है, प्लीज सर्च अबाउट द इकिगाई, इट्स अ वंडरफुल बुक। राइट डाउन इकिगाई, वंडरफुल बुक, आपको पढ़नी चाहिए। नाउ यू कैन सी द ईमेल, सो प्लीज राइट योर email also must be very professional। Like my email is 9bandtrainer। Why? And many times whenever I went for any interviews in any coaching institute, or I used to be an IELTS trainer, those person who train students to go to Canada and Australia, they need to pass some exam, IELTS exam, PT exam. So I used to train them. So my email was 9bandtrainer@gmail.com. It's very easy. And lot of wherever I went for the coaching interviews, they actually appreciated for my this email। টিউশন না হয় এই কিবা ইন্টেনসিভ চলি ও টিউশন কত পাবো মোৰ টিউশন আছে Then you are going to write your educational background. Please don't write your marks if you feel your marks are not good. No need to write the marks in your resume if your marks are not good. But if your marks are really good and if you don't have any work experience, then write your educational background first। सबसे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है अपना, और एक बार आप खुद से क्रिएट करें चीजों को, आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। आप खुद जब बनाएंगे अपना, तो आपको बेसिक इसमें फॉर्मेट से मैटर ज्यादा आपको माइंडसेट मैटर करता है। मैं आपको बता देता हूं आपको एक बार। ये एक्सपीरियंस आपने लिखा, कितने सालों का एक्सपीरियंस है? इनका एक्सपीरियंस क्या है? 5 years ऑफ फिजिक्स टीचिंग फॉर 11th-12th स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस जयपुर, ऑनलाइन जूम क्लास टीचिंग, यूट्यूब लेक्चर बनाए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिजिक्स पे, 3 year डाउट सॉल्विंग फॉर जेई एंड नीट। तो एक्सपीरियंस अपना लिख देना है आप। फिर अचीवमेंट क्या क्या रही हैं आपकी? सिक्योर्ड 16th ऑल इंडिया रैंक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एमएससी फिजिक्स 2019 इनमें ये रैंक आई, और ये सारा पास नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। देन स्किल्स, इन स्किल्स यू आर गोइंग टू राइट एमएस ऑफिस, जो भी आपको स्किल्स आती है, इनको वीडियो एडिटिंग आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है ये। और ये इनका चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस में मॉडल मेकिंग वीडियो यूट्यूब चैनल। गुड ड्रॉइंग स्किल, गुड साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। देन इंटरेस्ट, हॉबीज आपको वही लिखनी होती है जो उस जॉब से रिलेटेड है। अगर आप कुकिंग लिख रहे हो, कुकिंग वहां पर उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मत लिखो। अब ये साइंस के टीचर हैं, फिजिक्स टीचर हैं, तो इनकी हॉबीज देखो क्या क्या है। विजिटिंग साइंस म्यूजियम्स, पार्टिसिपेटिंग इन साइंस फेयर, डूइंग साइंस प्रोजेक्ट्स एट होम, लव टू रीड साइंटिस्ट बायोग्राफीज, डॉक्यूमेंट्रीज वॉचिंग। जितनी भी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सारा का सारा इनके करियर में हेल्प करने वाला है। सो एक पेज पर आपका रेज्यूमे होना चाहिए, एंड यू कैन क्रिएट, लर्न टू यूज कैनवा। इट विल टेक ओनली मैक्सिमम हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में आपको ये सारे ऑप्शंस सीख लोगे आप, कि कहां पर प्लस ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, यहां पर कलर होता है, बेसिक ये एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द टेक्स्ट। ओके, यू कैन लर्न इट। इट विल जस्ट ओनली टेक हाफ एन आवर। आप खुद से भी देख लोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। कैनवा इज वेरी इजी टू यूज, और यहां से आप और डिजाइन भी चेक कर सकते हो, आपको और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे विच यू कैन यूज। सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। सर रेज्यूमे में अगर मार्क्स को मेंशन नहीं किया जाता तो उस पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है? अगर उन कंपनी को चाहिए होंगे मार्क्स, तो वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेगी और बाद में भी पूछ लेगी। आप अगर आपके मार्क्स बिल्कुल कम लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेइज्जती वाला सवाल है ये, तो आप मार्क्स को एक बार नहीं लिखें, कॉलेज का नाम लिख दें और ईयर ऑफ पासिंग लिख दो। मार्क्स को लिखना जरूरी नहीं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक लग रहे हैं आपको कि वो 70% है या
वो 65 भी है या ऐसे हैं तो ठीक है। आपको लग रहा है बिल्कुल कम है यहाँ, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन ही उठाएगा कि ये इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो मार्क्स को स्किप कर सकते हो। और फिर आप एजुकेशन अपनी लास्ट में लिखो। पहले आप वो सबसे टॉप पर वो चीजें लिखनी होती है जिसमें आपको सी अंडरस्टैंड दिस। आपका रेज्यूमे अगला सिर्फ दैट पर्सन इज गोइंग टू सी योर रेज्यूमे ओनली फॉर 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स ही देखने वाला है, तो 7 सेकंड्स में उसको सबसे टॉप वाली चीजें दिखेगी। अगर आप किसी भी कंपनीज में अप्लाई करो जहां पर बहुत सारे रेज्यूमेज आ रहे हैं, तो एक पर्सन का रेज्यूमे सिर्फ 7 सेकंड्स देखा जाएगा। तो आपको उसको स्टार्टिंग में टॉप वाली चीजें वो लिखनी है, टॉप पर वो चीजें लिखनी है जो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो आपको लिखना है। सर एकेडमिक्स में अगर बात करूं तो एकेडमिक्स के लिए भी तो सीवी चाहिए होगा, उसमें क्या करें? एकेडमिक्स कैसे? मतलब सपोज इन पीएचडी इंटरव्यू रिलैक्स दैट व्हाई देन व्हाट विल आई डू एक्चुअली? पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो? असिस्टेंट? ऐसे ही मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जाना है, तो वहां पे तो मेरे को इंटरव्यू पूछेगा, तो तब क्या? तब मार्क्स को मेंशन करें या ना करें? आपके मार्क्स कितने हैं? सर सबके सामने नहीं बता सकता। फिर आप उसमें रेज्यूमे में भी आप सबसे लास्ट में लिखो उनको। आपको लिखना अगर जरूरी है, वहां मेंशन भी कर रखा है, अगर आप ऐसी कुछ पोस्ट के लिए जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के बिना नहीं चलेगा, तो आपको सबसे लास्ट में लिखने हैं फिर अपने मार्क्स। क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए वो मार्क्स देखेंगे और एक चीज आपको रेज्यूमे, सेम रेज्यूमे सब जगह नहीं देना है। जैसे वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड होता है, हम सभी में बांट देते हैं, सेम रेज्यूमे में ऐसा नहीं करना है। रेज्यूमे जो है आपका हर कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज करना है। उस कंपनी को समझना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्किल्स उनको चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे रेडी करना है। अगर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर, और जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई 30-40 कंपनी, 30-40। ओके सर, थैंक यू। व्हाट? थैंक यू फॉर द सजेशन, आई विल लुक इनटू इट। খেলা কি কইরেছে তোমার নিতে ম্যালটা কেমন সিনিয়র গেটা বইয়েছে ম্যালটা রোনা খেলা তো ओके, सो इसमें आपको रेज्यूमे जो है वो आपको हर कंपनी में यू आर गोइंग टू सेंड द रेज्यूमे, डिफरेंट रेज्यूमेस। अब कंपनी की प्रोफाइल को आपको समझना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना है, फिर उसके हिसाब से। ओके, सो आप एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस बोलते हैं उसको, तो वो आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं लिखी हुई हैं आपके रेज्यूमे में जो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए। अब मैं उन जॉब्स की बात कर रहा हूं जो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं, या फिर जो ऐसे जॉब्स हैं जो दिल्ली या फिर बड़ी बड़ी सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हो जहां पर बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक एटीएस सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे आप Naukri.com पर अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी कंपनीज में वहां से अप्लाई करते हो, Indeed.com से कर रहे हो, लिंक्डइन से कर रहे हो, तो उनका ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, वो अपने आप चेक कर लेगा कि आप में वो मैच कर रही है प्रोफाइल। अगर नहीं कर रही है तो आपका रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। एक सबसे बड़ी आपको चीज, जब भी आप कभी भी, ये मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो कभी भी आपको जॉब चाहिए तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपको कंपनी के बारे में पता होना जरूरी है। जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, जितना ज्यादा आप रिसर्च कर सकते हो, 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, उस कंपनी के बारे में सारा जान लो। मान लो आप किसी स्कूल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उस स्कूल में क्या क्या, कौन है प्रिंसिपल, कौन है, कौन चीजें हैं, और क्या क्या उस स्कूल के बारे में जान सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं पढ़ाने में, जो भी कुछ भी जान सकते हो, जितना जानोगे उतना बेटर रहेगा आपके बारे में। आपको उस कंपनी के बारे में क्या काम करती है, वो किस सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट्स कौन से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो रोल जिसके लिए वो अप्लाई किया है आपने, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और एट द एंड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। उसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। आपका इंटरव्यू हुआ, लास्ट में इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। Sir, if there is no question for a candidate, then he will reject. That's what I will do. ये आपको कभी नहीं करना है कि आपके पास क्वेश्चन होना ही चाहिए। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? Career से, मतलब उस कंपनी से, उस कंपनी से रिलेटेड। ये शो करता है आपका इंटरेस्ट, कि आप कंपनी में एक्चुअल में वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं। आपका इंथुजियाज्म शो करना चाहिए, यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू वर्क इन दैट कंपनी। वो क्वेश्चन आपका रिलेवेंट तभी होगा जब आपने कंपनी के बारे में रिसर्च की है। और ये अगर जो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं,
अगर ये स्किल्स आप डेवलप करते जाते हो 2-3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में डेवलप कर लेते हो, तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ रही है और वहां पर आप, इट विल बी योर चॉइस कौन सी कंपनी में आप काम करना चाहते हो। अदरवाइज जो भी मिल गया जॉब ठीक है, जितनी भी सैलरी मिल गई ठीक है, अदरवाइज इट विल बी योर चॉइस वेयर यू वांट टू वर्क, इन विच कंपनी डू यू वांट टू वर्क। So actually company is looking for, whenever you are going for a job interview, actually company में कुछ ज्यादा वो ऐसा इंसान देख रही है जो ऑनेस्ट है और लॉन्ग, जैसे अरेंज मैरिजेस में होता है, अरेंज मैरिज में जब सेम क्राइटेरिया जॉब इंटरव्यू का, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला इंसान चाहिए जो लॉन्ग टर्म कंपनी में रह सके, प्लस ऑनेस्ट हो, जो बोलता हो वो एक्चुअल में हो। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे आपको 100% कंपनी रिजेक्ट कर देगी। ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस आपने रिज्यूमे में लिखकर कहा है कि मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, और उसने बेसिक से आपसे पूछ लिया कुछ भी और आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आप अभी से आपका रिज्यूमे आज से ही रेडी करना स्टार्ट करें धीरे धीरे। उसमें अभी आप, बहुत अच्छी बात है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो आप जो मर्जी कंपनी में चाह रहे हैं उस कंपनी में हो जाएगा, जो बनना चाह रहे हैं वो बन जाएंगे। लेकिन ये जो स्किल्स बताई हैं ये आपके सारी काम आएंगे, ये होनी ही चाहिए। ये नहीं है तो आप हमेशा दबकर रहोगे, आप हमेशा झुकोगे, आप डरोगे, आप कॉम्प्रोमाइजेस करोगे, यू विल बी स्ट्रेस्ड, आपको डराया जाएगा, आपके कोलीग्स भी आपसे बातें करेंगे तब भी आपको डर लगेगा। कोलीग्स बोलेंगे अब कंपनी के रूल चेंज हो गए हैं, कंपनी पे आउट कम कर रही है, या कंपनी से निकालने वाले हैं, अभी एआई अब जॉब खत्म करने वाली है, या फिर अभी कंपनी बंद होने वाली है। आपको कोई डर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है 1 सेकंड में आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, या आप खुद का जॉब क्रिएट कर लेंगे। ये सारी क्वालिटीज अगर आप में होंगी तो आप खुद का जॉब क्रिएट कर लेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द जॉब। अपने रेज्यूमे में भी कभी भी लाई मत करिए क्योंकि वो उनको साफ पता लगता है, वो उनका काम यही है इंटरव्यूज लेने का, तो आराम से दे कैन इजीली असेस दैट यू आर लाइंग। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपने रेज्यूमे में लाई करते हो तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। जब भी वो जैसे उस टॉपिक पे टच करेगा जहां आपने झूठ बोला है, वो उसके बारे में और पूछना स्टार्ट करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग जाएगा बहुत ज्यादा, और आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएगा इंटरव्यू से पहले भी, क्योंकि आपने पता है आपको कि ये झूठ लिख रखा है आपने। सो नेवर राइट लाई थिंग्स इन द रेज्यूमे, और कभी कॉपी मत रखो पूरा का पूरा रेज्यूमे। लोग सीधा अपना भाई का रेज्यूमे वही अपना रेज्यूमे रखते हैं, सेम लाइंस वही चीजें, लाइंस एंड वर्ड्स सेम रहते हैं, वो मत करिए। डोंट मेक योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स और लाइंस लिखिए। जैसे ये सारे वर्ड्स, बहुत सारे रेज्यूमे आप चेक करना तो उनमें यही मिलेंगे, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, पंचुअल, डेडिकेटेड, क्विक लर्नर, ये सब बस वर्ड्स होते हैं, अवॉइड दीज वर्ड्स। एक्चुअल में इनका कोई प्रूफ नहीं है हार्डवर्किंग क्या हुआ, हार्डवर्किंग हो कि नहीं हो। तो हार्डवर्किंग आपने काम किए होंगे तो आप काम लिस्ट करिए, बजाय ये लिखने के कि मैं हार्डवर्किंग, वो अपने आप दिख जाएगा कि हार्डवर्किंग हो कि नहीं हो। गिव योर ऑन, जो भी जहां पर भी आपने काम किया है, वट एवर द वर्क यू हैव डन, गिव योर ऑन पर्सनल टच, राइट योर ऑन लाइन्स एंड वर्ड्स अबाउट इट। जैसे आपने किसी स्कूल में काम किया है तो आप ये बात को ध्यान से सुनना जो भी मैं कहने वाला हूं। बहुत सारे लोग लिखते हैं फिजिक्स टीचर, यहां इस स्कूल में काम किया, इतने 6 महीने किया, 1 साल किया, वो सभी लिखने वाले हैं। एटलीस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन में क्या लिखने वाले हो, आपने उस काम को कितना अच्छे से किया। फिजिक्स पढ़ाई आपने कितने अच्छे से पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई कितने अच्छे से पढ़ाई, ये लिख लो। प्लीज राइट इट डाउन, राइट 1 लाइन एक्स्ट्रा, अदरवाइज आपका रेज्यूमे में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपने फैक्ट्स लिख दिए और वहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आपने ये किया था, आपने, so that person is, वो आपका रेज्यूमे कुछ अलग नहीं होने वाला। Excuse me, sir. Yes, please. So how to write it? मैंने कितने अच्छे से किया है, how to write it? Okay. Now you are going. Same question from my side. Yes. Same question from my side. Now this is called, write down this word, quantifying your results. Quantifying means आपको लिखना है exactly. जैसे मेरे केस में मैंने किसी स्कूल में पढ़ाया तो मैं वहां पर लिखूंगा हेल्प स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस, या फिर आप फिजिक्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, हेल्प स्टूडेंट इन गेटिंग गोल्ड मेडल इन ओलंपियाड्स। वो क्वांटिफाई कर रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है कि आपने ये वहां पर स्कूल में ये काम किया था। सो यू नीड टू क्वांटिफाई दैट। क्वांटिफाई इन द सेंस कि आपको लिखना है कि एग्जैक्टली वहां पर कितना, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो वहां पर आपने कंपनी का कितना बेनिफिट किया वो आपको लिखना है। एंड फॉर दिस पहली चीज आप अपने लैंग्वेज में लिख दो और फिर उसको चैट जीपीटी पर कॉपी पेस्ट करो। चैट जीपीटी को बोलो इसको रीराइट करो प्रोफेशनली, रीराइट प्रोफेशनली। प्लीज यूज चैट जीपीटी फॉर, बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग।
आप क्रिएटिव राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है तो चैट जीपीटी विल बी हेल्पफुल। हर चीज आप खुद से नहीं सीख सकते हो। आप मैथ्स के मान लो आप एक्सपर्ट हो, आप क्रिएटिव राइटिंग एक्सपर्ट नहीं हो, बट चैट जीपीटी विल हेल्प यू। चैट जीपीटी बोलो री राइट इट प्रोफेशनली, इट विल राइट इट और ऑटोमेटिकली। ये काम करने पर पता नहीं लग जाएगा कि चैट जीपीटी से ऐसा कुछ क्या है? नहीं, चैट जीपीटी का नहीं पता लगता अगर आपको चैट जीपीटी यूज करनी आती है। चैट जीपीटी में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड दे देती है, तो लिख दो राइट इजी वर्ड्स, वो आप वहां से और खुद का थोड़ा सा टच दे दो उसमें, वो नहीं पता लगता चैट जीपीटी का। और अगर पता लग रहा है तो भी नहीं है, बस आपको अच्छे से आपको ये समझना है कि वो रेज्यूमे में वर्ड ऐसे बहुत भारी भारी वर्ड्स नहीं लिखने हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने लिखा कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस टू बिजनेस सेल्स फॉर द कंपनी, ये आपका जो प्रोफाइल था वो आई वॉज, यहां पे मैंने काम किया Amazon कंपनी में, मैंने काम किया, मेरा काम था आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर B2B सेल्स फॉर द कंपनीज टेक्नोलॉजी। अब इसको एक्चुअल में आपको कैसे लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए अचीव्ड 110% ऑफ द टारगेट in the B2B business to business technology division of the company, closing 37 new clients, contributing to 20% additional revenue. मीन्स आपने डेटा लिख दिया कि इतना आपने फायदा किया किसी का, आपको वो लिखना जरूरी है कि फायदा कितना किया। ठीक है, अब जैसे मान लेते मेरा एग्जांपल ले लेते, मैंने ये लिख दिया कि मैंने वेबिनार कंडक्ट किया। अब बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या लिखना चाहिए? मैं मान लो अपने रेज्यूमे पे ये बात लिख रहा हूं कि मैंने ये कॉलेज था, इसका यहां पर वेबिनार क्रिएट किया, अब अपना वेबिनार किया, तो क्या लिखना चाहिए? एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। conducted an webinar and helped student to achieve their dreams, ऐसा कुछ? ये भी है लेकिन एक्चुअल में वो कुछ है नहीं। एक्चुअल में नहीं होगा। उज्जवल क्या लिखना चाहिए? सर बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, कितने? मान लो 70 88 यस सर। मैंने क्या किया 70 स्टूडेंट्स के लिए? अपने कंट्रीब्यूशंस का भी कुछ दे सकते हैं, ऐसा कुछ अचीवमेंट्स। अब इसमें आपने नॉलेज बढ़ाया सर। हाँ, कुछ आ रहा है आइडिया? यस सर, आपने मतलब एक्सटर्नल नॉलेज जिसके बारे में हमें पता नहीं था। हबीबा, आदित्य, उज्जवल सर मतलब हाउ हम लोग कैसे जॉब सिक्योर कर सकते हैं आगे चल के, और किस तरह उसके लिए अभी से प्रिपेयर करते हैं, इनके बारे में सिखाया हमें। प्लस मैं ऐसा लिख सकता हूं उसमें कि हेल्प 60 या 70 स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर रेज्यूमे एंड क्रैक देयर, हेल्प इन क्रैकिंग देयर इंटरव्यूज। और फिर एक्चुअल में मान लो कुछ दिन बाद में फीडबैक आती है कि इन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ये हुआ। अभी एक क्लासेस में तो इतना होने वाला नहीं है, एक क्लास में आप कितना नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करनी पड़ती। तो लेकिन अगर आप उससे बेनिफिट होता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं फिर जिससे, तो आपका सिलेक्शंस होता है, तो वो मैं लिख सकता हूं कि ये बच्चों का, इतने बच्चों का गूगल में सिलेक्शन हुआ, इतने बच्चों का Amazon में हुआ, विप्रो में हुआ, TCS में हुआ, महिंद्रा में, और इसमें हुआ, जो भी कंपनीज होती हैं, दैट कैन बी रिटन, राइट? सो इसको आपको भी ऐसा लिखना चाहिए अपना अचीवमेंट। सो डोंट जस्ट ओनली राइट व्हाट यू डिड, हाउ गुड यू डिड दैट वर्क, दैट यू नीड टू राइट। ये तो ऑब्वियस है चीज है कि आपने ये किया, वेबिनार किया। और ज्यादातर रेज्यूमे आप चेक करना, अपने ब्रदर्स या जो भी आपके एल्डर ब्रदर्स हैं उनका रेज्यूमे होगा, और आप उनको जो सीख रहे हो आज उनकी हेल्प करना, ताकि आपको और आइडिया लगे इस चीज में। आप एक बार उनका देखना, रेज्यूमे चेक करना, सीधे ऐसे ही लिखा होगा, कैसा कितना अच्छे से वो काम किया वो लिखना है। You need to find out what exactly you did extraordinary in that work and write that down. वो काम आपने कितने अच्छे से किया। ओके, ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या रहता है हमेशा? रिसेंट एक्टिविटीज और जो काम आप अच्छे हो उन चीजों को पहले, और फिर नीचे उन चीजों को तो धीरे धीरे जिनमें आप अच्छे नहीं हो, वो सब आपको स्टार्टिंग में वो जो एकदम शॉकिंग वाली चीज लिखनी चाहिए। नाउ राइट डाउन दिस, राइट डाउन हेडिंग टाइपोस। नेवर डू टाइपोज इन योर रेज्यूमे। आप किसी का रेज्यूमे चेक कर लेना, 10 लोगों में 5 एक रेज्यूमे होंगे जिनमें बहुत टाइपो। टाइपो मींस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप। सो अवॉइड दोज काइंड ऑफ टाइपोस, ये ग्रामेटिकल और ये सब।
ये व्हाई शुड बी अवॉइड, व्हाट डज इट शो, क्या दिखाता है ये? हबीबा, व्हाट डज इट शो? आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, पंक्चुएशन मिस्टेक कर रखी है, व्हाट डज इट शो? I'm not good at नहीं आता मुझे, मतलब इंग्लिश में लिखना इतना अच्छे से, ग्रामर कमजोर है, हम वीक है। बिल्कुल। आदित्य? Basically, we are. Sorry. Can I respond? आदित्य। Sir, it shows that we have a weak hold on English and मतलब सर ऐसा ही हमारा इंग्लिश पे होल्ड अच्छा नहीं है और हमारा नर्वसनेस भी काफी हद तक शो करता है। यस, एमलन? Poor communication skills. और ये आपका एक्चुअल में केयरलेसनेस दिखाता है। हाँ, वही केयरलेसनेस होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर होने का नाम नहीं। बोलते हैं कि रीड करो, कुछ लिखा है उसको रीड करो, एक दो वर्ड स्किप कर देंगे, एंड को स्किप कर देंगे, बहुत सारे वर्ड्स को स्किप करते हैं, वो केयरलेसनेस होती है। वो उनसे पता लगता है वो एक्चुअल में कोई भी काम को परफेक्ट तरीके से करने में बिलीव नहीं करते। ये चीज दिखाती है कि आप कोई भी काम को परफेक्ट तरीके से 100% सही तरीके से किया जाए, उसमें आप बिलीव नहीं करते, बस जल्दी से उस काम को फिनिश करो। ये आपकी केयरलेसनेस दिखाती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, सो अवॉइड दीज टाइपोस। अदर थिंग, अवॉइड अनप्रोफेशनल ईमेल। जैसे अगर आपने लिख रखी है क्यूट प्रोग्रामर @gmail.com, आई एम द बॉस @gmail.com, जूनियर बॉय @gmail.com, लवली प्रिंसेस @gmail.com, एंजल और ऐसे प्रिंसेस जो कुछ लिख दिया आपने। प्लीज डोंट यूज दीज काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल ईमेल्स। क्रिएट अ गुड ईमेल, और उसमें ज्यादा नंबर्स नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 नंबर्स। 4 से ज्यादा नंबर है, अगेन इट्स अनप्रोफेशनल, इट मींस आपको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो यूज ओनली मैक्सिमम 4 नंबर्स कैन बी देयर, बल्कि जितने कम नंबर होंगे इट्स बेटर। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। Try to get, so anyone who would like to share their emails बताओगे अपनी? हबीबा, what's your email? Unmute yourself. हबीबा सुल्ताना 12@gmail.com। ठीक है, ओके। आदित्य, उज्जवल, अमलान? सर आदित्य 200326@gmail.com। That's too much. ज्यादा अमलान चुटी lahan@gmail.com। अमलान चुटी .bora 1703@gmail.com। मैक्सिमम 4 नंबर्स होनी चाहिए। यस, अयान? सर अयान for you ray@gmail.com। उज्जवल? उज्जवल lahan@gmail.com। ठीक है, फाइन। ओके, एक चीज जो है, आपको चैट जीपीटी का यूज करना है इसमें, और कैनवा का यूज करना है, और एक आपका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत मैटर करता है। मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में बताया, एक हाउ टू टॉक टू एनीवन। आप एक बुक भी प्लीज पढ़ना है इसको, और ये आपको हेल्प करेगी आपके ऑल द रिलेशनशिप्स में और आपके करियर के अंदर, हाउ टू टॉक टू एनीवन। सो बिहेवियर आपका बहुत मैटर करता है। सो नेवर बी रूड एंड ओवर कॉन्फिडेंट इन जॉब इंटरव्यूज। इट्स लाइक अगेन द सेम अरेंज मैरिज में आप पहले से ही रूड हो रहे हो तो उनको पता लग जाता है कि ये लड़का सही नहीं है। आप उसने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, उनके घर वालों ने, और आपने ऐसा जवाब दिया, जवाब से ही पता लग जाएगा कि कैसे हो आप। सो नेवर बी रूड एंड ओवर कॉन्फिडेंट इन जॉब इंटरव्यूज। सो असर्टिव कम्युनिकेशन इज समथिंग। इफ योर कॉलेज इज फेमस, तो राइट योर एजुकेशन ऑन टॉप। If you have done internship or job in any particular company, then write that first. If your marks are good, then, or if you have topped the college, or if you have published any paper, research paper, then write that first. If your skills are really, really unique and good, and which are relevant for the current job requirement, then write them first. Okay. So if you have made any impressive project, then write that first. पहले उस चीज को लिखो जो आपने अच्छी चीजें की है। एंड इफ यू नीड टू राइट सम अनइम्प्रेसिव थिंग्स, तो उनको आपको बॉटम में लिखना है, और या फिर आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको लगता है तो। और अपने रेज्यूमे के अंदर आपको एक्शन वर्ड्स का यूज करना है। एक्शन वर्ड्स का मतलब आपने ऐसा क्रिएट किया, ऐसा आपने डिजाइन किया, ऐसा आपने बिल्ड किया। आई बिल्ड दिस पिक्चर, आई क्रिएटेड दिस। ओके, बस यही सब बातें हैं। और हॉबीज आपको मैंने बताया, हॉबीज आपकी वो वाली लिखनी होती है जो उससे रेलिवेंट हो, वरना कोई फायदा नहीं।
हॉबीज आपकी वैसी ही होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड हैं, और रेज्यूमे में वो चीजें लिखनी है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उससे पहले रेज्यूमे में एक वर्ड है उसके बारे में अपने दोस्त को बोलो कि मुझसे पूछ कि ये क्या है, और आप उसके ऊपर बोलो, डिटेल में बोलो, 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, एक एक चीज के बारे में कि क्या किया था क्या नहीं किया था। और आपका रेज्यूमे डिफरेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल और ये सब, ठीक है। अब इंटरव्यू के अंदर आपको प्रोफेशनली ड्रेस करना है। ड्रेस जो है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है। एक ही ड्रेस है, ड्रेस का आपकी उस इंटरव्यू के हिसाब से आपको देखना है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आई थिंक कमिंग उसमें बात कर सकते हैं। और ऑनलाइन इंटरव्यू जब भी आपका होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए। देयर शुड बी नो नॉइस। इंटरनेट सही होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो, जूम जो भी यूज कर रहे हो, इट शुड बी गुड। बैटरी मस्ट बी फुल। साइलेंट होना चाहिए जगह पर। ईयरफोन काम करनी चाहिए। रूम बंद होना चाहिए। लाइट जो है प्रॉपर फ्रंट में आनी चाहिए। आपकी लाइट कभी भी आप यूज कर रहे हो, लाइट आपकी हमेशा फ्रंट में होनी चाहिए। ओके, एंड दैट्स ऑल। कैमरा एंगल हमेशा चेक करें। चेक योर कैमरा एंगल द वे यू कैन सी आदित्य इज सिटिंग, उस तरीके से। फिर भी थोड़ा सा अगर आप मेरी तरह कर सकते हो कि आपके जो फैन नहीं दिख रहा है या फिर रूफ नहीं दिख रही है, दैट विल बी बेटर। दैट्स ऑल। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन टीच यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेने चाहिए। देयर आर कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन ऑल द इंटरव्यूज, सो वो क्वेश्चंस आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है पूछने का। तो वो क्वेश्चंस हम आई थिंक प्रोफेसर सुजाता वी कैन डिस्कस इन मे बी इन कमिंग, क्योंकि वो बहुत इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। Yes, sir. Yeah. So I think if you have any doubt, you can ask. Yes. So, dear students, if you have any kind of doubt, you can ask to Mohit sir. Feel free to ask in Hindi also. যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, তোমালোকে সুধিব পাৰা ছাৰক, আৰু ইংৰাজীটো সুধিব পাৰা, হিন্দীটো সুধিব পাৰা, আৰু বা অসমীয়াটো যদি কবা মই ছাৰলৈ কনভে কৰি দিম, তোমালোকে সুধিব পাৰা যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে। If you have any question related to public speaking, body language, interview preparation, resume building, networking, you can ask. Language, English language, leadership skills. If you need to ask anything, you can ask. Whatever we have discussed, everything is practical. If you don't apply it, there is no use of it. कोई भी पूछ लो, किसी पे हिंदी में आप पूछ सकते हैं। Sir. You can write in chat, you can write. I can answer. Yeah, Ujjwal, please go ahead. Ujjwal Huda. Sir, how can I improve my communication skill about English language? Okay. First thing, एक चीज तो सभी को समझनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम चीजें हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिकेशन स्किल होता है बातचीत करने का तरीका। जैसे कि आपके कोई घर पर कोई गेस्ट आया तो आपको उससे कैसे बात करनी है। पहले उसको चाय कॉफी पूछना होता है, या फिर पहले पानी देना होता है, या फिर पहले खाना पूछना होता है, या पहले नहाने के लिए पूछना होता है। वो एक स्किल होती है पूछने की, कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। तो उसमें लैंग्वेज अलग चीजें रहती हैं और कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए आपको पहली चीज आपको लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए। आपको 10 टेंसेस हैं जो करने चाहिए। आप चारों के चारों प्रेजेंट में 4 टेंसेस, पास्ट के 3 टेंसेस, लास्ट वाला छोड़ सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज नहीं होता उसका, और फ्यूचर में पहले 3 फ्यूचर, बस। इसके अलावा आप ज्यादा ग्रामर पे फोकस मत करो। ये 3 टेंसेस को कैसे करना है उसमें मेरे को बताने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको। हर एक टेंस का अपना यूज है। चैट जीपीटी की हेल्प से करो, एक्सरसाइजेस कर लो। लेकिन देखो, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सिंपल प्रेजेंट का यूज क्या होता है? डेली रूटीन की बातें करने के लिए। तो अपना फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का डेली रूटीन बोल के देखो और लिखो उसको। आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कहां पर क्या यूज करना है। फिर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो चीज आपके सामने हो रही है, जैसे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आपके सामने हो रही है, फिर उस टाइम हो रही है। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम टेकिंग वेबिनार राइट नाउ, यू आर लिसनिंग टू मी, वी आर लुकिंग एट द लैपटॉप स्क्रीन। ऐसे तो ये सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो कि इसी तरीके से हर एक टेंस का अपना यूज है, वो आपको सीखना है। और 10 टेंसेस पे कंप्लीट कमांड, मतलब आपसे कुछ भी पूछा जाए कि आप, जैसे मैं आपसे अयान आपसे पूछता हूं कि कब से आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो,
तो इसको इंग्लिश में कैसे आंसर करो इसी क्वेश्चन का आंसर? सर मेरा इंग्लिश वीक है बहुत। नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करो कि मैं पिछले 2 घंटे से वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, बोलो। आई एम अटेंडिंग द वेबिनार फ्रॉम लास्ट 2 hours। ठीक है, अभी आदित्य। I have been attending this webinar for the last 2 hours. वंडरफुल। उज्जवल। I am attending the webinar since 2 hours. हाँ, आपको एग्जैक्टली समझना है कहाँ सिंस आता है, कहाँ फोर आता है, और उसको एक एक की प्रैक्टिस करनी है। एक टेंस पे 1 हफ्ता भी काम करोगे तो भी परफेक्ट हो जाओगे। जल्दी से स्पीड से करोगे तो नहीं होगा। आदित्य का सही था, बाकी इनको वर्क करने की जरूरत है। लेकिन आपको एक एक टेंस पर 3 दिन 4 दिन लगाने, फिर अगले टेंस पे वर्क करो और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारो। सो वी कैन हैव अ पर्टिकुलर क्लास ऑन दिस ग्रामर टॉपिक। ये सारे टेंसेस 10 टेंसेस कैसे उनको प्रैक्टिकली करना है, अगर वो आपने कर लिया तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। 10 टेंसेस इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए हाउ टू टॉक टू एनीवन प्लस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दीज बुक्स आर अमेजिंग बुक, प्लीज रीड इट।